to the ceremony, to our learning session. Okay, so before start, can we have 80 participants here? Can you guys just let me know in the comment box how many moves have you done, or are you guys new to this parts mooting and everything, so we can conduct the session accordingly. You guys can just let me know in the chat box, like okay, if you guys are just okay, two moves, you guys can say we will go if we have more experienced motors. In that way, we will try to cater the majority. Okay, one move, new. Okay, no experience, beginner, we are new at mood core. Okay, so we have a mix number of people here. Okay, one move, 4 to 5 moves. Okay, we have so very diverse amount of people here. I'll just share my screen so that you guys will know exactly in what pattern are we gonna go for this session. So just let me share my screen. Okay, it is like drafting. Let me share my screen. Just let me know when my screen is audibility, visibility. Any one of you can just let me know in the comment box. Okay, I'm a beginner. Okay, that is good. We have a diverse amount of people here. Just let me drafting memorial. Okay, so my screen is window memorial. Okay, is my screen audibility visible to you? Yes, sir. Okay, so for the participants, I'll first go to that what we are gonna cover. So today's session is on memorial drafting, and Javeria told us about accordingly what session is exactly the title of the session and everything. But generally, this session is on memorial drafting, as you can see on my screen. At any point, if my screen is not visible to any one of you, just let me know. And then, what will be the scheme of the session? So every session has a scheme in which the session goes on. So firstly, we will cover the research methodology, how a person, how a motor, how a researcher, how a participant is supposed to do the research. And research, after the research, we will go to the decoding a scoring criteria, as memorials are judged on as criteria. We will decode on generally on what criteria those memorials are scored and are judged. Then we will proceed to the structure of memorial. Then we will get some rules for memorial drafting. Then I'll share some tips and guidelines for drafting a winning memorial. And then we have a special session here. And we cannot go into the a lot of detail for the next part, which is using Microsoft Word for drafting. And we will just go through that, but we will not go to in detail because that requires a whole session. Then we will have a Q&A session. So am I clear? Just let me know in the chat box, because I don't want to be speaking to the walls, and I want we will have this section very interactively. Okay, so we are clear with that. So now let's proceed to the research method. Research. So okay, so I'm not supposed to give you definitions, but still मैं आप लोगों को definition थोड़ा let's start with the definition. Basically, legal research is a process of finding information. अब यहाँ पे information से क्या मुराद है when it comes to the memorials? It comes to the laws. लॉस से क्या मुराद है? लॉस से मुराद आपके स्टेट्यूट्स हैं, आपके इफ इट इज इंटरनेशनल लॉ सो इट्स कन्वेंशंस, आप और इंटरनेशनल लॉस। और जब आप नेशनल लॉस की बात करते हैं, स्टेट्यूट्स हो गए, आपके प्रेसिडेंट्स हो गए। देन वी हैव केस लॉस। केस लॉस से मुराद आपके स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट्स हैं। स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट से मुराद फिर हम आते हैं कि केस लॉस किस तरह के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ केस लॉस। वी हैव वन अथॉरिटेटिव केस लॉस, जिनकी अथॉरिटेटिव बाइंडिंग नेचर होती है। देन वी हैव परसुएसिव लॉस, जो जिनकी परसुएसिव वैल्यू होती है। अब इनका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है यूजफुल टू एड्रेस द लीगल क्वेश्चंस। हर जो कंपटीशन होता है उसमें एक लीगल
प्रोपोजिशन, आपको प्रोपोजिशन दी जाती है, आपको बता दिया जाता है कि दीज आर दी क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस एट हैंड के लिए ये चीजें हमने ढूंढनी है। अब टिप्स क्या है? अब हम आते हैं चीजों पे। फिर हम पाकिस्तान लॉ साइट के बारे में आपको बताएंगे, हम कमेंट्रीज और अदर। अच्छा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिसर्च? जो पाकिस्तान में मेनली यूज होता है वो है पाकिस्तान लॉ साइट। पाकिस्तान लॉ साइट आज जो मोटर्स हैं उनको पता होगा कि दैट इज अ लॉ साइट, अ वेबसाइट दैट हैज सो मेनी केस लॉस, तकरीबन सारे केस लॉस उस वेबसाइट पे मौजूद है। हाई कोर्ट्स के हो गए, तमाम रिपोर्टेड जजमेंट्स तकरीबन मौजूद हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड जजमेंट एंड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक जजमेंट है, इफ दैट इज नॉट रिपोर्टेड, वो कभी पब्लिश नहीं होती इन द गैजेट्स, वो जो पब्लिकेशंस होती हैं उनमें नहीं होती। तो इवन इफ अगर वो बाइंडिंग भी है तो पाकिस्तान लॉ साइट पे नहीं होगी। यू कैन नॉट फाइंड दैट ऑन पाकिस्तान लॉ साइट। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल लें इस केस की, बेनजीर भुट्टो केस है या अल्ताफ हुसैन का केस है, दोस आर बाइंडिंग केसेस, बट वो आपको कभी भी पाकिस्तान लॉ साइट पे नहीं मिलेंगे ड्यू टू द रीजन दे आर नॉट रिपोर्टेड जजमेंट्स। सो अगर जज कभी आपसे पूछता है कि इट इज रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड, तो हर फैसले के आखिर में रिपोर्टेड फॉर, जज कमेंट करता है अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, एंड अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग या अनअप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग वो वहां से पता चलता है। सो यू है पाकिस्तान लॉ साइट पे एक पूरी सर्च इंजन है। वहाँ पे आप कीवर्ड फाइंडिंग भी कर सकते हैं। अदर देन कीवर्ड फाइंडिंग यू हैव साइटेशन फाइंडिंग। आप हर कोड के हिसाब से चल सकते हैं, और केसेस के स्पेसिफिक डोमेन्स के हिसाब से। सो दे हैव advanced search and they have a keyword search. After that you can consult commentaries. हर लॉ की कमेंट्री होती है और कमेंट्रीज में केस लॉस होते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर dealing with the commentaries, because in Pakistan there's a issue, commentaries are not accurate. वहाँ पे जो commentaries हैं उनमें made up cases होते हैं, उनमें ऐसे cases का जिक्र होता है जो कि सिरे से exist ही नहीं करते, या अगर वो exist करते हैं तो उनको गलत कोट किया जाता है। सो अगर आप कोई कमेंट्री से केस लॉ ले रहे हैं, यू नीड टू वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है कि व्हाट दिस केस इज। कमेंट्रीज में आपको केस लॉस की भरमार मिल जाएगी, यू विल फाइंड लॉट ऑफ केसेस। एंड फॉर एग्जांपल, आप पीपीसी का केस है, पाकिस्तान पेनल कोड या क्रिमिनल लॉ पे मूड प्रॉब्लम है, आप पीपीसी की कमेंट्री लेंगे। अब हम इसके बाद में आपको बताऊंगा हाउ टू चूज अ कमेंट्री। आप कमेंट्री लेंगे, आप उस सेक्शन पे जाएंगे, जब आप उस सेक्शन पे जाएंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स। आपके जो प्लेंटिफ के लिए भी लॉस मिल जाएंगे, केस लॉस मिल जाएंगे, और डिफेंडेंट के लिए भी, दोनों साइड से आप चीजों को कवर कर पाएंगे। सो बट बिफोर चूजिंग अ कमेंट्री यू हैव टू, हर राइटर की अपनी एक रेपो होती है। सो आप जाएंगे, आप देखेंगे कि इस सब्जेक्ट पे अच्छी कमेंट्री किसकी है, आप फिर कमेंट्री चूज करेंगे। आप जाएंगे और दुकान पर जाकर कोई भी कमेंट्री लेकर नहीं आएंगे, आप पहले अपने सीनियर से पूछेंगे, आप रिसर्च करेंगे कि कौन सी अच्छी कमेंट्री अवेलेबल है फॉर दिस सब्जेक्ट मैटर या दिस लॉ, और फिर आप कमेंट्रीज चूज करेंगे। अब अदर वेबसाइट्स भी एक चीज है, हर हाई कोर्ट की अपनी वेबसाइट है, हर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी वेबसाइट है, केपीके हाई कोर्ट की अपनी वेबसाइट है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट है। आज क्या होता है, जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपनी जजमेंट्स अपनी वेबसाइट्स पे पब्लिश कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, सो यू कैन यूज देम एज वेल। अब अब आप स्पेसिफिकली, आपको केस नहीं मिल रहा है पाकिस्तान लॉ साइट से, कमेंट्रीज से, तो आप जनरली सर्च करेंगे केसेस डीलिंग विद दिस, केसेस डीलिंग विद दिस। आपको ब्लॉग्स मिलेंगे जहां पर बताया जाएगा कि दिस केस डील्स विद दिस दिस दिस। फिर आपको वहां से उनकी साइटेशन मिलेगी या आपको नाम मिलेगा केस का। एक साइटेशन होती है, साइटेशन इज लाइक PLD 2015-512। इसकी एक सबसे पहले पब्लिकेशन नाम होता है। देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स फॉर लॉ, CLC है हमारे पास, PLD है, सबकी एक अपनी पैटर्न होता है। पहले पेज नंबर होता है, फिर केस नंबर होता है, कुछ में ईयर पहले होता है, कुछ में पेज नंबर बाद में होता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द जर्नल यू आर यूजिंग। अब एक नाम होता है, सिकंदर, फॉर एग्जांपल सिकंदर हयात वर्सेस द स्टेट, फॉर एग्जांपल हमास वर्सेस एसोसिएशन ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉ। सो
अब आप उस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब आप जनरल गूगल सर्च से वो जब नाम लिखेंगे तो आपको वो केसेस जनरली मिल जाते हैं, बट यू कैन नॉट चूज एनी वेबसाइट फॉर दैट। आपको देखना है कि आप किस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज हाउ यू विल रिसर्च पाकिस्तान लॉ साइट, कमेंट्रीज, अदर वेबसाइट्स, और बाकी जो ब्लॉग्स हैं, स्टडी ब्लॉग्स हो गए, कानूनदान, एंड एडिशनली आजकल के ज़माने में वी हैव अनदर यूजफुल टूल। पहले ये नहीं होता था, यूट्यूब हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आप अगर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं और वहाँ से आपको कोई अच्छा केस लॉ रेफर हो जाता है, तो फिर आप वो उस केस लॉ को ढूंढेंगे और फिर आप उस चीज़ को पढ़कर अपनी चीज़ निकालेंगे। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब रिसर्च तो मैं आपको बता दिया कि तीन चीज़ें होती हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज अब रिसर्च को लेके कैसे चलना है। अब हर मूड कोर्ट कंपटीशन में मूड प्रॉब्लम होती ही होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल मूड कंपटीशन इज द मूड प्रॉब्लम। आपने मूड प्रॉब्लम को पढ़ना है थोरोली, बार बार पढ़ना है। जब तक आप 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा मूड प्रॉब्लम को नहीं पढ़ेंगे, आपको मूड प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। 2 दफा पढ़ने के बाद आपको लग सकता है कि नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ मुझे पता है कि मूड प्रॉब्लम में क्या चीजें हैं। बट नहीं, आप जब तक 6-7 दफा नहीं पढ़ेंगे, यू विल नॉट हैव अ ग्रिप ऑन दैट। आपको मूड प्रॉब्लम एक एक बात याद होनी चाहिए। आपको अगर लाइन नंबर नहीं याद कि ये बात किस लाइन नंबर में लिखी हुई थी, बट यू शुड नो कि किस पैराग्राफ नंबर में है। अगर मुझसे जज सवाल करता है ड्यूरिंग द प्लीडिंग, सो आई शुड नो कि ये किस पेरा नंबर में है। सो रीडिंग अ मूड प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट, बट मूड प्रॉब्लम को थोरोली आपको रीड करना है, और आपको लाइन नंबर याद ना हो, आपको पैराग्राफ नंबर याद होने चाहिए कि किस लाइन में ये बात हुई है। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ लीगल क्वेश्चंस या इश्यूज। हर मूड प्रॉब्लम के आखिर में 4-5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब वो क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, आपको उनका स्कोप पता करना है, आपने उनको ब्रेक डाउन करना है कि ये क्या बता रहा है, ये इशू क्या है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्टडी रेलेवेंट लॉस एंड आइडेंटिफाई एप्लीकेबिलिटी देयर ऑफ। अब उसके बाद एक चीज आपको पता चल गई, प्रॉब्लम ब्रेक डाउन हो गया। अब आपने क्या करना है, रिलेवेंट लॉस को रीड आउट करना है। आप अपनी तरफ से कोई नतीजा अखज नहीं कर सकते। एक चीज है, और फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ पे अगर एक केस है, तो अब फैमिली लॉ पे कौन कौन से स्टेच्यूट्स हैं, आपने उनको पढ़ना है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, या वेस्ट पाकिस्तान फैमिली लॉ कोड्स हैं। मतलब आपने उन तमाम लॉज को ढूंढना है, उन सबको आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें मेरे रिलेवेंट है, और इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाएं, ताकि एक दफ़ा आप उन चीज़ों को देख लें, तो फिर आप गो थ्रू करने के बाद आपके पास नोट डाउन हो चीज़ें कि कौन कौन से लॉस मेरे रिलेवेंट हैं और कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्शंस मेरे प्रॉब्लम के लिए हैं। अब उसके बाद सबसे पहले केस लॉस इसके बाद आता है। सबसे पहले आप रिलेवेंट लॉस ढूंढ लिए, आपने आपने उनको नोट डाउन कर लिया। अब आएंगे आप रिलेवेंट प्रेसिडेंट्स पे। प्रेसिडेंट्स क्या है, प्रेसिडेंट्स जिस तरह के आप जानते हैं आप सब कि जो हाई कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले हैं, और जो कि बाइंडिंग नेचर के होते हैं, कुछ परसुएसिव नेचर के होते हैं। अब परसुएसिव और बाइंडिंग नेचर कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल, आपकी मूड प्रॉब्लम जो है दैट इज इन द सुप्रीम कोर्ट, तो आप हाई कोर्ट के फैसलों को बाइंडिंग नेचर करार नहीं दे सकते, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ हायर कोर्ट, हाई कोर्ट इज अ लोअर कोर्ट एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो अब आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप डिविजनल बेंच के सामने हैं। डिविजनल बेंच के सामने जो सिंगल बेंच के फैसले होंगे वो परसुएसिव नेचर के होंगे, जबकि फुल कोर्ट के या लार्जर बेंच के फैसले बाइंडिंग नेचर के होंगे। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन परसुएसिव नेचर एंड बाइंडिंग नेचर। अब बाइंडिंग नेचर, अब आपने देखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा केस लॉस चाहिए। एक दफा आपने अब आप रेलेवेंट लॉ जब स्टडी करेंगे, रेलेवेंट सेक्शन स्टडी करेंगे, तो आप उन रेलेवेंट सेक्शंस पे, रेलेवेंट क्वेश्चंस पे आप केस लॉस ढूंढ सकते हैं। तो अब आपने रेलेवेंट केस लॉस ढूंढने हैं और उसके बाद फिर आप जब वो पढ़ेंगे, तो इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, देयर इज अ ट्रिक कॉल्ड कंट्रोल एफ ट्रिक। आपके पास कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, द कीवर्ड इज टेररिज्म।
या कीवर्ड इज फैमिली। सो अब आप अपना केस लॉग खोलेंगे, आप कंट्रोल एफ करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, तो इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप पेराज देखेंगे, जो चीज है, क्योंकि 60 पेजेस की जजमेंट आप नहीं पढ़ सकते प्रैक्टिकली इन कंपटीशन, क्योंकि आपने सिर्फ एक फैसला नहीं पढ़ना, आपने बहुत सारे फैसले पढ़ने हैं। सो कहने को तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि रीड ऑल दी जजमेंट्स, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल इन बोर्ड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। सो यू नीड टू डू द कीवर्ड सर्च। आप कीवर्ड सर्च करेंगे और जो आपके रेलेवेंट पार्ट्स हैं उन्हें अपने लैपटॉप में हाईलाइट कर दें। वंस हाईलाइटेड, फिर आप देखें कौन सा पार्ट मेरे रेलेवेंट है, और फिर उसको कोट करें कि पेरा नंबर, क्योंकि जब आप किसी जजमेंट को कोट करते हैं तो आप बस जनरली ये नहीं बताते कि ये बात इसमें हुई थी, आपको पेरा नंबर, लाइन नंबर, पेज नंबर कोट करने होते हैं, साइट करने होते हैं। आई शो यू मेमोरियल एज वेल इसके बाद, जिसमें आपको वो एग्जांपल दिख जाएगी। अच्छा, जिस तरह की पहली बात हुई थी पाकिस्तान लॉ साइट एंड हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की वेबसाइट का, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो स्टेट्यूट्स हैं और केस लॉस हैं, दीज आर प्राइमरी सोर्सेस, ये प्राइमरी सोर्सेस हैं। देयर आर थिंग्स कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेस एज वेल, which are research articles or expert opinions. Expert opinions are secondary sources. For example, एक प्रोफेसर साहब है, उनकी बहुत अच्छी कमांड है एट सम सब्जेक्ट मैटर, तो आप उनके ओपिनियंस को एज अ सेकेंडरी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये तमाम रिसर्च तो कर रहे हैं, अब क्योंकि रिसर्च होती है इशू वाइज, 4 इश्यूज हैं, आप पर इशू रिसर्च करते हैं। आपने ये तमाम प्रोसेस तो किया, बट अगर वो कंपाइल नहीं करेंगे, आप साथ साथ उन्हें एक जगह कंपाइल नहीं करेंगे, आपके लिए मेस क्रिएट हो जाएगा। आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे सही से, आप उसे कंपाइल नहीं कर पाएंगे, आप उसे मेमोरियल की शक्ल नहीं दे पाएंगे। सो आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको कंपाइल करें, कंपाइल द रिसर्च एट वन प्लेस, एक वर्ड फाइल लें, उसको इशू 1 का नाम दे दें। वंस आपने उसे इशू 1 का नाम दे दिया, आप तमाम जो उसमें रिसर्च होती है उसमें कोड करते जाए। फॉर एग्जांपल, आपने लिख दिया कि मैंने इस केस में PLD 15/2015 में पेज नंबर 15 पेरा नंबर 3 में ये चीज पड़ी है, और उसके नीचे वो जो पेरा है उसको कॉपी पेस्ट कर दें। और इसी तरह फिर आप लिखते हैं नीचे कि MFLO मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 आपका रेलेवेंट है, आपने नीचे उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी तमाम जो रेलेवेंट आपकी रिसर्च है वो एक जगह पे होगी। और फिर अगर आपने लॉस पढ़ लिए हैं, आपने फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद आप फैक्ट्स का क्या करेंगे, जहाँ पे अब आपने लिख तो लिया PLD 2015 पेज 15 पेरा 13, अब आपने नीचे उसे साइड में कर दिया। अब आपको पता है कि आपके एग्जैक्टली किस फैक्ट के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। आप लिख देंगे इशू, ऑब्वियसली दैट इज फॉर इशू 1, अगर वो इशू 1 का वर्ड फाइल है या उसकी कंपाइलेशन है। बट आप उसमें ये भी लिख देंगे किस फैक्ट के लिए है। फॉर एग्जांपल, आप लिख देंगे लाइन नंबर 13 पेज 2 ऑफ द मूड प्रॉब्लम या कॉम्प्रोमी। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप ड्राफ्टिंग पे आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आपने किस रिसर्च को कहाँ किस फैक्ट के लिए इस्तेमाल किया है। आपको बार बार हर चीज रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज द रीजन आप उसको एक जगह कंपाइल करें। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ मेमोरियल। ओके, मेमोरियल के, अच्छा, अब मैं आपको मेमोरियल की डिफिनेशन देने नहीं आया, तो मेरे पास 2-3 मेजर अल्फाज हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड लीगल आर्ग्यूमेंट्स addressing each legal propositions. So the main thing the memorial does is legal arguments well structured हों और issues को cover कर रहे हों। Okay, now मेमोरियल जो है, हमने बात की वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो जनरली मेमोरियल्स के लिए क्या होता है, एक तरतीब होती है। वी हैव कवर पेज, द फर्स्ट पार्ट इज कवर पेज, देन द टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर उसके बाद होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर वी हैव इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, अच्छा, कवर पेज मैं आपको दिखा दूंगा, जो सिंपल मेमोरियल में आपको शो करूंगा। उसके अलावा रूल्स में कवर पेज के रूल्स बता दिए जाते हैं। कवर पेज में ये चीज हो, इस साइज की हो, ये तमाम चीजें हो। कवर पेज में रूल्स में अगर कोई चीज नहीं है, आपने नहीं डाली, अगर कवर पेज में रूल्स में लिख दिया गया है, उसे रेड कर दें, आप रेड कर दें, ब्लू कर दें, ब्लू कर दें। Rules dictate the cover page. Rules dictate each and every part of the memorial.
देन टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है. टेबल ऑफ कंटेंट आई विल शो यू इट अ सिंपल मेमोरियल एज वेल. ये उसमें तमाम चीज़ों कौन सी चीज़ कहाँ है वो तमाम चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट में होती है. देन वी हैव इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज. इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में तमाम वो अथॉरिटीज मेंशन कर दी जाती हैं. ओके वी हैव अ कमेंट. ओके सो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में तमाम चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये अथॉरिटीज साइट हुई हैं, ये लॉ साइट हुए हैं, ये केस लॉ साइट हुए हैं. ओके सो mark. Okay so that is okay. So if there are questions we will take that at the end, क्योंकि हो सकता है वो बाद में एड्रेस हो जाए और ताकि आप अपने क्वेश्चंस नोट आउट कर ले तब तक. ओके सो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में वो चीजें होंगी. देन वी हैव लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस. अब कुछ मूड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, कुछ मूड को रूल्स लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस को अपने मेमोरियल्स में शुमार नहीं करते. वो बता देते हैं कि ये चीज़ें मेमोरियल के स्ट्रक्चर में हो तो वही होती हैं, उसके अलावा आप नहीं डाल सकते. फॉर एग्जांपल कुछ मोड कोड रूल्स बता देते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन नहीं होंगे तो नहीं होते. फॉर एग्जांपल जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी सिंपल मेमोरियल उसमें लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन नहीं है. द रीजन फॉर दैट इज मोड कोड रूल्स डज नॉट अलाउ लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन इन द स्ट्रक्चर. अब लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन बेसिकली होता क्या है, आप इसमें दो टेबल बना दें. लेफ्ट साइड पे आपने लिखने हैं जो शॉर्ट फॉर्म है और राइट साइड पे आपने लिख देने हैं जो फुल फॉर्म है. फॉर एग्जांपल पीएलडी है तो पीएलडी का मतलब है पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट. या अगर एससी है आप नीचे सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, लेकिन एससी लिखेंगे तो आप इसमें बता देंगे अपने लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन में कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब अब एससी है, हाई कोर्ट एचसी है. अब एलएचसी से क्या मुराद है, लाहौर हाई कोर्ट. तो इस तरह की चीजें होती हैं. देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन. स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन इज कि जो फॉर एग्जांपल एमएफएलओ का केस है तो अब आप किस एग्जैक्ट प्रोविजन के तहत आप उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन बन रही है. अब इसमें थोड़ी सी इख्तिलाफ ये पाई जाती है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के जो स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन है वो सेम हो या मुख्तलिफ. इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि आपकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती. देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट. मैं आपको इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा. स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मोस्टली जो मूड कोर्ट रूल्स होते हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. आपने लिख देना है कि अब आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना वो स्टेट्यूट, जो कि मोस्टली गलती करते हैं. आपने एग्जैक्टली वो प्रोविजन कॉपी पेस्ट नहीं करनी. आपने अपने फैक्ट्स में से दिस पिटिशन हैज बीन ब्रॉट बाय सच एंड सच according to the provision articles 5 of this या section 3 of this, और उसके बाद which states कोमा, और उसके बाद फिर उसको सॉरी कोमा नहीं, उसको फिर हम उसमें डाल देंगे, उसको हम इटैलिक भी करेंगे. ओके द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आप जो प्रोविजंस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 194(3) है या कोई और सेक्शन है उसे कॉपी पेस्ट करके कहीं लिखा है अपने मेमोरियल में, या आपने कोई केस लॉ से कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ लाया है तो आप उसे इन्वर्टेड कोमास में भी डालें और उसे इटैलिक करें. इटैलिक करना इज अ मस्ट. सो अब आप उसके बाद वो जो स्टैट्यूट है या वो जो प्रोविजन है उसको आप इन्वर्टेड कोमास में कर दें, और या इन्वर्टेड कोमास में नहीं करने तो इटैलिक करना भी काफी होता है. अब आपने उसे जब इटैलिक कर दिया और आखिर में एक लाइन आ जाती है कि अंडर देयरफॉर दिस कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन फॉर दिस. अब जो डिफेंडेंट है वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कि द प्लेंटिफ हैज ब्रॉट दिस इशू टू दिस कोर्ट अंडर दिस प्रोविजन, लेकिन उसका लोकस स्टैंडाई नहीं बनता. आप ये लिख देंगे कि he does not, वो तमाम एलिमेंट्स पूरे नहीं करता, बिकॉज डिफेंडेंट कभी भी जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, वो चैलेंज करता है. सो आपने उसमें से कोई चीज निकालनी है. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स पूरे नहीं हो रहे ड्यू टू दिस रीजन, ये एलिमेंट पूरा नहीं है इस वजह से नहीं हो रहा, उसका लोकस स्टैंडाई नहीं बन रहा इस वजह से जुरिसडिक्शन नहीं बनती. देन वी हैव क्वेश्चंस प्रेजेंटेड. क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4
क्वेश्चन जो होते हैं वो एक पेज पे डाल देते हैं 1 2 3 4, एंड वी कॉपी पेस्ट, जहाँ जो मूड कॉपी पेस्ट होंगे. देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 2 पेजेस की बना देते हैं, 4 पेज 5 पेज सेम एज इट इज. जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं. दैट इज नॉट हाउ यू शुड डू. आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एक पेज से नहीं बढ़ाने. आइडियली इट शुड बी हाफ पेज या हाफ से ज्यादा कर लें, नो मोर देन दैट. ओके. फॉर एग्जाम्पल इन आर्बिट्रेशन मूड्स दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर्बिट्रेशन मूड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तीन जो जो प्रीपोजिशन है दैट इज 50 पेजेस प्लस, 60 पेजेस 70 पेजेस लग जाती हैं. तो अब वहां पे आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को 2 पेज 3 पेज तक ले जा सकते हैं. दैट इज एक्सेप्टेबल. बट व्हेन इट कम्स टू द मोस्टली पाकिस्तानी नेशनल मूड्स, वहां पे आप 1.5 पेज 1 पेज या आधे पेज से ज्यादा ना ले जाएं, और उनकी वर्डिंग रिफ्रेस्ड हो. कभी भी एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उनको रीफ्रेस करना है. रीफ्रेस्ड हो और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के अलग हों, क्योंकि दोनों के जो दोनों का एक बयानिया होता है जो वो अलग होते हैं. फैक्ट्स लोगों प्लेंटिफ के लिए अलग फैक्ट्स रेलेवेंट हैं, डिफेंडेंट के अलग फैक्ट्स रेलेवेंट हैं उसमें से. सो आपने दोनों के लिए अलग कोट करने हैं. देन वी हैव समरी ऑफ प्लीडिंग्स. अब आप नीचे जो पूरी एक रिसर्च करेंगे हर इशू की, वहां पे एक समरी ऑफ प्लीडिंग्स होगी. समरी ऑफ प्लीडिंग्स में क्या होगा? समरी ऑफ प्लीडिंग्स में 3 4 लाइन में एक ही पेज पे तमाम इश्यूज की समरी बता देनी है. तमाम इश्यूज की मैक्सिमम 2 पेज. 2 पेज पे भी नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है 1 पेज पे. 3 4 लाइन में आपने बता देना है. आपके जो नीचे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होंगे उनको बता देना है ड्यू टू दिस रीजन हम ये मान रहे हैं. देन यू हैव द प्लीडिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स जो कि आपकी रिसर्च है. एंड देन वी हैव कंक्लूजन या प्रेयर ऑफ रिलीफ. कंक्लूजन इज अ वर्ड जो कि ज्यादातर कंसिडर नहीं किया जाता, बट कुछ लोग करते हैं, कुछ मेमोरियल्स कहते हैं कि कंक्लूजन हो. लेकिन अगर मेमोरियल में कंक्लूजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसे प्रेयर ऑफ रिलीफ ही कहते हैं, प्रेयर फॉर रिलीफ ही कहते हैं. और कंक्लूजन इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्या कि आपको बताया जा सके कि वो आखिरी पार्ट होता है किसी भी मेमोरियल का. सो that is the structure of the memorial. Now we are coming to decoding the scoring criteria. क्योंकि कोई भी मेमोरियल जज होता है स्कोरिंग क्राइटेरिया पे. आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ मूड्स, दिस इज व्हाट आई हैव फाइंड आउट कि कोई भी मूड कोर्ट कंपटीशन हो, ये जो 6 चीजें हैं इन्हीं चीजों पे मेमोरियल जज होते हैं. एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, वो देखेंगे कि आपने फैक्ट्स को लाए हैं, आप फैक्ट्स को बार बार ला रहे हैं. आपको पता है, मेमोरियल शो करता है कि आपने इस पैराग्राफ इस लाइन को मेंशन किया है. कहीं पे कोई ऐसा पेज ना हो जिसमें बिल्कुल ही फैक्ट्स का जिक्र ना हो. कहीं ना कहीं फैक्ट्स का जिक्र होना चाहिए. अब आप वो फैक्ट पूरा का पूरा उधर लिख नहीं देंगे. आप कहेंगे ड्यू टू दिस as it is mentioned in the mood problem, या as आप लिख देंगे कि ये act of the plaintiff. अब एक्ट ऑफ द प्लेंटिफ जब आप कहेंगे तो आप फुट नोट देंगे कि पेरा नंबर 3 मूड प्रॉब्लम पेरा नंबर 3. ऊपर आपने फैक्ट का जिक्र कर लिया, नीचे आपने फैक्ट को साइड कर लिया कि ये यहाँ से है. देन वी हैव रिकॉग्निशन ऑफ इश्यूज. ये थोड़ा सा कुछ मूड प्रॉब्लम, कुछ स्कोरिंग क्राइटेरिया रिकॉग्निशन ऑफ इश्यूज की तरफ जाती है, कुछ नहीं जाती. रिकॉग्निशन ऑफ इश्यूज का ये है कि क्लियरली पता चले कि इश्यूज अलग अलग हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इश्यूज इंटरलिंक्ड होते हैं. तो अब आपका काम है कि आपने उन चीजों को क्लियर करना है कि ये इशू इतना है, ये इशू नीचे है, ये इशू फर्स्ट है, ये इशू सेकंड है. ऐसा कभी ना लगे कि दोनों इश्यूज एक ही बात को कर रहे हैं. लेकिन कभी कभी ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हो जाते हैं. सो दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल. देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स. अब लीगल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, आपने उन चीजों को क्लियर रखना है. दीज आर द प्रिंसिपल्स, आपने उन चीजों से बाहर नहीं जाना. क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च, दिस इज अ वेरी वेग टर्म जो कि मूटिंग क्राइटेरिया में है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव दिस. क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च. एक्सटेंट ऑफ रिसर्च तो क्लियर है. एक्सटेंट ऑफ रिसर्च इज आपकी रिसर्च कितनी एक्सटेंसिव है. एक इशू में फॉर एग्जांपल एक मेमोरियल में एक केस लॉ है, एक प्रेसिडेंट है,
और एट द सेम टाइम एक मेमोरियल में 4 केस लॉस हैं, 5 केस लॉस हैं, 6 केस लॉस हैं, 6 केस लॉस हैं, फिर 2 रिसर्च आर्टिकल्स हैं। सो एक्सटेंट ज्यादा किसकी है, दूसरे मेमोरियल की, तो उसको वहां पे स्कोरिंग में फायदा होगा। एंड क्वालिटी ऑब्वियसली, क्वालिटी एंड एक्सटेंट आर इंटरलिंक्ड। तो जितनी ज्यादा रिसर्च होगी उतनी ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो आपको मैं मेमोरियल में दिखा दूंगा। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, दैट इज कनेक्टेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ इश्यूज। सो जितनी ज्यादा रिकॉग्निशन ऑफ इश्यूज क्लियर होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी। ये ना हो आपके, ओके, द वन वेरी सिंपल रूल इन मेमोरियल ड्राफ्टिंग इज देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी। आपके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट हो, वो लीगल हो और वो क्लियर हो। वो अगर कह रहे हैं कि ये चीज गलत है तो आपने उसको क्लियर करना है, उसको एम्बिगुअस नहीं रखना। अगर वो आपने शो करना है कि इस चीज में एम्बिग्विटी है इन लॉ, तो वो फिर आपने क्लियर करना है। पर जनरली अगर आप एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू विल नॉट से कि इसमें एम्बिग्विटी है। आप बताएंगे कि ये गलत है, ये इस चीज ये इस तरह है, वो इस तरह है। आपने क्लियरली चीजें लिखनी है, अपने किसी भी आर्ग्यूमेंट को आपने एम्बिगुअस नहीं रखना। देन वी हैव फॉर्मेटिंग एंड साइटेशंस। कोई भी मेमोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग इज हाउ द मेमोरियल लुक्स। क्या उसकी ऑप्टिक्स अच्छी है? ऑप्टिक्स मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू मेमोरियल्स। ऑप्टिक्स, क्या वो अच्छा लग रहा है? देन द सेकंड पार्ट इज रूल्स। मूड कोड रूल्स बता देते हैं कि दीज आर द रूल्स फॉर मेमोरियल ड्राफ्टिंग, और अब आप उन रूल से नहीं हट सकते। अगर मूड कोड रूल्स में बता दिया गया है कि आपने फुट नोट की स्पेसिंग 1 रखनी है, तो 1 होनी चाहिए। अगर 1.5 है, 1.5 होनी चाहिए। उसमें बता दिया है कि हेडिंग एंड टेक्स्ट दोनों की जो फॉन्ट साइज है वो 12 है, तो वो 12 होंगे, 13 नहीं होंगे। इसी तरह कवर पेज की मैंने बात की थी। कवर पेज पे लोग अक्सर क्या करते हैं, वो चीजें भी लिख देते हैं जो मूड को जो रूल्स में नहीं है। रूल्स ने फॉर एग्जांपल बता दिया उसमें कवर पेज में लोगोस होने चाहिए तो होंगे। अगर उसमें लोगोस का जिक्र नहीं है, आप लोगोस नहीं डालेंगे। देन अगर उसमें केस का नाम, ईयर और अप राइट कॉर्नर पे टीम कोड का कहा गया है, तो ये चीजें लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। द रूल्स आर वेरी सिंपल एंड आपको रूल्स को फॉलो करना है, ईच एंड एवरी रूल। क्योंकि मेमोरियल जो स्कोरिंग का मेन क्राइटेरिया रूल होता है। आप बेशक ऊपर वाली तमाम चीजें पूरी कर लें, जो ऊपर की 5 चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ इश्यूज, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, लेकिन अगर आपने फॉर्मेटिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो वो मेमोरियल एक बेस्ट मेमोरियल कंसीडर ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ मूड कोड रूल्स में होता है कि आप प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के मेमोरियल के फर्स्ट पेज को रेड कर दें, ब्लू कर दें। सो आपने करना है। So, अगर आप वो मिस कर देंगे तो आपका मेमोरियल काउंट ही नहीं होगा फॉर बेस्ट मेमोरियल एंड एवरीथिंग। सर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आपकी आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। बंद करो।
आई थिंक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर की आवाज़ भी नहीं आ रही और सर की स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही. Hello, voice. आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आई थिंक कोई सिग्नल्स इशू है जिसकी वजह से सर की आवाज़ नहीं आ रही है. लेट मी क्लियर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस. सत्तर की एंट्री की वजह से नेटवर्क का बड़ा मसला हो रहा है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. सर की तरफ सिग्नल्स का थोड़ा इशू था. Am I audible now? यस सर. ओके, अजय भैया, कैन यू टेल मी कहाँ से मैं कट ऑफ हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि मैं कट ऑफ हुआ। अगर आप मुझे पॉइंट आउट कर दें कि फ्रॉम वेयर आई वाज कट डाउन, या कितने देर पहले हुआ था, ताकि आई कैन कंटिन्यू देन। माय स्क्रीन इज विजिबल ना? अच्छा, अबाउट 5 minutes we are going to look about rules for memorial drafting. Okay, rules for memorial draft. Okay, IREC का मैंने आपको बता दिया था, so we were okay. So IREC and CRAC. This is where I was cut out, right? If you can just confirm, क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है मेरी आवाज? यस सर, अभी क्लियर आ रही है. यस सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। सो इधर इधर से कट आउट हुए थे ना हम, इस स्क्रीन से। If anyone can सर confirm आप from सर आप इससे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, वो आप बता रहे थे लास्ट ये पॉइंट। ये वाली। Yes sir, you were talking about the IREC formula. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग आयरेक फॉर्मूला। ये मैंने एक सैंपल लिख दिया है,
how we use IREC. सो मैं आपके लिए एक और सिंपल शेयर करूंगा इससे बेहतर जो हमारे मूड प्रॉब्लम में है. सो लेट मी ओके, हम उस पे बाद में आते हैं कि आयरेक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू व्हाट आर टिप्स फॉर हैविंग अ विनिंग मेमोरियल. आपने क्या करना है बेसिकली, व्हेन आई विल शो यू द a winning memorial, I will show you the use of IREC in that as well. Draft with start your drafting with the pleading. आपने डायरेक्ट सबसे पहले आपने कभी नहीं बैठना कि मैं पहले बैठकर स्ट्रक्चर करूंगा. स्ट्रक्चर इज द लास्ट पार्ट. जो फॉर्मेटिंग है वो आपने सबसे लास्ट में करनी है. स्टार्ट विद ड्राफ्टिंग द प्लीडिंग्स. अपने इशू पे प्लीडिंग स्टार्ट करें, उसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करें. देन रीविजिट योर रिसर्च. एक दफा आप रिसर्च करें ना, उसको काउंटर चेक करें, उसको देखें कि फॉर एग्जांपल एक मूड कोर्ट कंपटीशन में क्या हुआ. आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. लाइक मैंने 2 दिन लगा के रिसर्च किए कि जो इस सेक्शन के मुताबिक अगर मर्डर होता है, दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो मर्डर था, तो क्या होता है. देन लेटर मुझे एक जजमेंट मिली लेटर सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें मेरी वो तमाम रिसर्च को डिसरिगार्ड कर दिया गया था कि ड्यू टू डेट जजमेंट मेरी पिछले 2 दिन की मेहनत जो थी, तमाम रिसर्च वाज डिसरिगार्डेड हैविंग रिगार्ड्स टू डेट जजमेंट. लेकिन अगर मैं कभी वो जजमेंट काउंटर चेक ना करता तो मैं उसी रिसर्च के साथ रहता. कभी भी आप लिखते नहीं हैं बगैर सोचे. हमेशा लिखने से पहले अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करें, स्ट्रक्चर करें. अब स्ट्रक्चर योर आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग आयरेक. हमेशा अपने आर्ग्यूमेंट्स को आयरेक मेथड से ही करना है. गिव साइटेशन इन फुटनोट्स. कभी भी आपने साइटेशन ऊपर नहीं लिखनी होती. आप ऊपर स्टेट केस का नाम लिखते हैं और नीचे फुटनोट्स में साइटेशन डाल देते हैं. फॉर्मेटिंग आपने एज पर रूल्स करनी है. रूल्स ने कहा ये करना है, आपने वही करना. रूल्स ने कहा 12 होनी चाहिए मेमोरियल ड्राफ्ट का साइज, तो कर दें. अगर नहीं होता तो वो नहीं करना. देन वी हैव द competition rules. Okay, competition rules are done. Then we have issue with headings and sub headings. अगर headings हैं तो sub headings हैं. अगर आपने सिर्फ एक heading नहीं देना, हर issue में एक heading होगी and then there will be sub headings. Okay, do we have still the meeting? Okay, we still okay. So basically we have a short 2-minute breaks after this. After a 2-minute breaks, Javier, can you send a link again, because we will start at 8:25 sharp. If Javier, if I'm audible to you there. Okay. आप सब ज्वाइन कर लें. जवेरिया विल बी शेयरिंग अ न्यू लिंक विथ यू ऑल. सो वो ज्वाइन कर लें. वी विल स्टार्ट एट दैट लिंक. आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा. आई विल शेयर द लिंक इन द चैट एज वेल. जस्ट लेट मी शेयर दैट. ओके, ये आप लोग, आई एम शेयरिंग दैट लिंक इन द चैट बॉक्स. आप लोग ये लिंक ज्वाइन कर लें. वी विल कंटिन्यू अवर सेशन देयर.